तो टुडे टॉपिक इज ग्राफ। ग्राफ किस तरह का डेटा स्ट्रक्चर है बच्चे? एनीवन? Non-linear. नॉन लीनियर। एंड इससे पहले हमने नॉन लीनियर वाला कौन सा पढ़ा है? ट्री। Tree. राइट, ट्री और ग्राफ लगभग एक जैसे ही हैं, बट फर्क केवल इतना है बच्चे कि जो आपका ग्राफ है, ग्राफ के केस में आपका साइक्लिक पॉसिबल है, मतलब साइकिल क्रिएट हो सकता है, बट इन केस ऑफ ट्री इट इज नॉट पॉसिबल। राइट, मीन्स व्हाट इट मीन्स टू से कि भाई आपका ट्री कभी भी क्लोज नहीं होगा। राइट, वो हमेशा ओपन एंडेड होगा, लाइक दिस। राइट, लाइक दिस। बट इन केस ऑफ ग्राफ वो क्लोज एंडेड हो सकता है। राइट, या फिर आप उसको कह सकते हैं मैश टोपोलॉजी। राइट, मीन्स कि भाई आपका ग्राफ कुछ नहीं है, आपका क्या है, एक कलेक्शन ऑफ वर्टिक्सेस एंड एजेस। V stands for vertices, which is also known as nodes, right? And edges, which are the links. Links, sometimes it is referred as link or edge, right? That means we have in this diagram, if you see the diagram, you have how many nodes, how many vertices in this diagram? How many vertices or how many nodes are there? Five. Yes, these are the nodes, right? These are the nodes where we store elements, right? These are the nodes. And the link between those nodes, the link between those nodes are called as edges, like this. This is our edge. Interconnecting link between two nodes or vertices is referred as edges. So graph is a collection of vertices and edges, right? ओके, चलो ये तो उसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। अब एजेस भी आपकी जैसे ग्राफ है, ग्राफ जैसे अब ये वाला डायग्राम आप देख रहे हैं, फर्स्ट वाला जो डायग्राम देख रहे हैं ये वाला, इसमें आप देखो, इसमें जो भी आपकी एजेस हैं उसमें कहीं पे भी डायरेक्शन इंडिकेटेड नहीं है। राइट, राइट बच्चे, डायरेक्शन नहीं है ना, यानी कि बाई डायरेक्शनल है, कोई भी अनडायरेक्टेड है ये। इसकी डायरेक्शन नहीं दी गई है कि एक से दो ही जा सकते हैं या फिर दो से तीन ही जा सकते हैं, कोई एरो नहीं है, सिंपल लाइन से इंटरकनेक्टेड है। सो दोज एजेस आर रेफर्ड एज अनडायरेक्टेड एजेस, जहां पर आपको डायरेक्शंस प्रोवाइडेड नहीं है। राइट, यानी कि आपके पास पाथ आप टू से वन भी मान सकते हैं, वन से टू भी मान सकते हैं। राइट, और in case second category in the edge we can have is directed, where you are having directed graphs. Let's see in this diagram. In this diagram you can see you have one edge from 1 to 2. It is signifying that there is a path from node 1 to 2. Right, so it is referred as directed. Direction has been provided. Right, so these are the edges referred as directed edges. Sometimes some edges will look like this. Both side arrow, representation of both side arrow means this is bi-directional graph. You have path from 1 to 2 and 2 to 1 also, right? So this is the type of edges we can have in the graph. Okay. Now, in some graph, edges are unweighted, means there are no cost associated with it or no weight associated with it. For example, in this diagram, there is no cost defined, right? So these are called unweighted graph. If cost has given, that means you have some value here, like this. That, for example, you have one edge from 2 to 3 which has cost of 5. That means this is the cost of 5, which deals with, simply which refers that the cost of from going to 2 to 3 is 5. Right, if cost is given, that is, then we can say that is weighted graph. See in this diagram, upper diagram, there are some cost given, like here cost is given 1, here cost is given 3, here cost is given 4. That means these are the cost for traversing on that edge. Right, so basic terminology we have at the time, in case of edge, edges could be directed or undirected, or weighted or unweighted. If cost is given, then the graph will be recognized as weighted graph. Right, and
in this diagram, in the third diagram, diagram 3, in the diagram 3, you can see there are cycle, right? If there is a cycle in the graph, we can say that we will refer that graph as cyclic graph, right? If there are loops and cycles in the graph, then that graph is recognized as cyclic graph. And if there is no loop, then it is recognized as a cyclic graph, right? So these are the basic assumptions we can have in case of graph data structure, right? So here you can see this is a loop here, which means to say we are going from 5 to 5. That is we are looping at 5, node number 5. That means it is a loop, self loop, right? And in this time, and in this graph, in this diagram, you can say that there is a loop. See, 4 to 2, 2 to 3, and 3 to 4. There is a loop. There is a cycle, right? So this will be called as cyclic graph. Okay, guys. So these are the basic knowledge of our graph data structure. How many types of graph we can have, how many edges of graph we can have. So graph could be weighted graph or unweighted graph. Graph could be cyclic graph or acyclic graph. Edges could be directed as or undirected edges, right? So let's move further. Okay, now how to represent the graph in a computer, right? Now understand how we represent graph in a computer, because these graph you are seeing in front of you is the logical representation of a graph. आप तो इसको समझ सकते हैं, ह्यूमंस तो इसको समझ सकते हैं, बट मशीन तो इसको नहीं समझती। मशीन को तो आपको ग्राफ किसी न किसी डिजिटल फॉर्म में देना पड़ेगा, या तो आप उसे मैट्रिक्स फॉर्म में बनाएंगे, या फिर आप उसको लिस्ट की फॉर्म में से रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ को कंप्यूटर्स में, उसके हमारे पास कुछ मेथड्स हैं। सबसे पॉपुलर मेथड जो आपका है, दो मेथड्स हैं आपके सबसे पॉपुलर। एक तो है आपका एडजेसेंसी मैट्रिक्स, एक है आपका एडजेसेंसी लिस्ट। एडजेसेंसी मैट्रिक्स is a n by n matrix where n represents what? Number of nodes. So for example, if I am going to represent this graph in a computer using adjacency matrix, then n is 5. So our matrix will be 5 cross 5. Okay, then we will create a matrix like this. There will be 5 rows and 5 columns, 5 columns and 5 rows, right? And let's see, we have edges with the name 1, 2, 3, 4, 5. See, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5। अब इसको कैसे बनाना है देखो। अब जो गिवन हमारे पास ग्राफ है उसका हमें क्या बनाना है बच्चे? एडजेसेंसी मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना है उसको। ठीक है, तो देखो 1 to 1, 1 से 1 तक कोई पाथ एग्जिस्ट करता है? नहीं, कोई पाथ नहीं है, राइट? सो we will put 0 here, right? There is no path, so we will put 0 here, right? And 1 to 2, 1 to 2 is their path? Yes, 1 to 2 is their path. Then we will put 1 here. That means it is showing that there is a path from 1 to 2. So we will represent that by digit 1. Similarly, 1 to 3, there is no path. 1 to 3, there is no path, no direct path. We are saying direct path only, right? So there is no direct path. We have to move from 2 only. That's why we will put 0 here. There is no direct path from 1 to 3. That's why we have kept 0 here, right? Then check 1 to 4. 1 to 4 is path available. Yes, there is a direct path available. So we have kept 1 here. Okay. And 1 to 5, there is no direct path. So we have kept 0. This is how we are going to establish a matrix, right? A adjacency matrix. We need to find the adjacent. Only for adjacent we will put 1, otherwise we will put 0 there, right? So check it out. From 2 to 1, yes, 2 to 1 is path available because it is a undirected graph, so it may be considered as a bidirectional graph. So there is a path available 2 to 1, so we have kept 1 here, right? 2 to 2,
there is a path? No, there is no path from 2 to 2. So that means it is 0. 2 to 3, 2 to 3, 2 to 3, is there a path? Yes, there is a path. So we have kept 1 here. Okay. 2 to 4, 2 to 4, 2 to 4 is a path available. Yes, available. So we have kept 1 here. 2 to 5, there is no path, so 0. In the same way, there is no path from 3 to 1, 0. There is a path from 3 to 2. Yes, there is a 3 to 2. There is a path. That means we have kept 1. This is how we just fill our adjacency matrix. So this matrix is representing this logical structure of this graph. Right? Right, dear? Have you got it? Hello? Are you getting? Yes, sir. तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाने के लिए आपको क्या करना है बच्चे? नोड, जितनी आपकी नोड्स हैं या वर्टिसेस हैं, उतने नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स आपको बनाने होंगे, और हर एक को एक लेबल देना होगा. लेबल क्या होगा? जो कि आपका नोड का लेवल है. 1 2 3 4 5 है यहाँ पर. अगर यहाँ पर ए बी सी डी ई होता, तो यहाँ पर भी लेबल आप ए बी सी डी ई करके देते. तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या है आपकी? एक मैट्रिक्स है जो कि n बाई n की है. मींस what number of nodes by number of nodes की है, where n is the number of vertex, and aij equals to 1 if ij are adjacent. See, these are the rules. If a and j equals to 1, अगर 1 तब हम पुट करेंगे जब वो i और j जो है एडजेसेंट है. अगर वो i और j एडजेसेंट नहीं है तो हम वहां पर 0 पुट करेंगे, अदरवाइज we'll put 0. This is how we just created the adjacency matrix of this given graph. Right? Now second method we can have adjacency list. Adjacency list. So obviously if there is a list, definitely we are going to use a list. So a linked list will be maintained for every vertex or every node, right? So we are having how many nodes? 5. So there will be a list of 5 nodes, and every node has a linked list to its adjacent, right? Number of linked list equals to number of vertices, right? We have 5 vertices, so we have 5 linked list. 5 linked list. We have to create 5 linked list, right? So अब इसको देखते हैं. अब आपको 1, आपने इनको लेबल दे दिया 1 2 3 4 5, जैसा कि आपके लेबल्स हैं आपके यहाँ पर. let me copy it there. So okay, let's say this is our graph. We have to represent it using adjacency list, right? So we have 5 nodes, so we have created 5 linked list here like this, and we will interconnect only those nodes which are adjacent to each other. So check for 1, this is label 1. So for label 1 there are 2 neighbors, right? Only 2 neighbors which are directly adjacent to 1. So we will create a node with this label here like this, and further linked list, further list with 4. एक का आपका नेबर क्या है? 2 है. एक नोड आपने 2 की बनाई. फिर दूसरा नेबर कौन सा है? 4 है. एक नोड आपने 4 की बनाई. अब इसका और कोई नेबर नहीं है, तो इसकी लिंक लिस्ट कंप्लीट हो गई. इट्स डन, राइट? सेकंड पे आते हैं. अब हम यहाँ पर हैं. इसके नेबर देखो. इसका नेबर, एक नेबर है आपका 1, तो हमने एक लिंक लिस्ट बनाई 1 से. फिर दूसरा नेबर कौन है? 3. 3 से एक लिंक लिस्ट बनाई बच्चे. फिर तीसरा नेबर कौन है? 4. 4 से एक लिंक लिस्ट बनाई. तो ये अब इसके 3 नेबर हैं. देखो 1 2 3. लेट मी चूज. ओके, इट हैज one neighbor this, one neighbor this, one neighbor this. So this linked list of 2 will contain 1 3 4. Similarly for 3, let's check. For 3
How many neighbors are there? Three neighbors are there. One is 2, second one is 4, third one is 5. 2, 4, 5. Okay. And for 4, how many neighbors are there? 1, 2, 3, 4. So 1 will be the neighbor, 2 will be the neighbor of 4, 3 will be the neighbor of 4, 5 is the neighbor of 4. So that's why this linked list contain these many nodes, right? Okay, last one is 5. 5 के कौन कौन से नेबर हैं? डायरेक्ट नेबर आपके 3 एंड 4, 3 एंड 4, राइट? सो इस तरह से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कंप्यूटर में किसी भी ग्राफ को। तो आपके पास दो मेथड है, एक तो आपका है either you will be using matrix method or either you will be using linked list method, right? तो दोनों के ही अपने प्रॉब्लम्स हैं, दोनों के ही अपने एडवांटेजेस हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर इसका हम कॉम्प्लेक्सिटी चेक करेंगे तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी n स्क्वायर, बिकॉज इट इज n बाई n मैट्रिक्स। सो स्पेस complexity will be order of n square, right? And in case of linked list, it will be order of n plus 2e, 2e, right? That means n number of linked list will be there. And why we have put in 2e here? Because every linked list having the value twice, right? Let's say if you check from 1 to 2, you have used here. From 1 to 2, 1 times here. From 2 to 1 will be there. See, this is 2 to 1. Second time it is used here. So every edge will be called twice, right? So the space complexity for this will be n plus 2e. Now, when to use matrix and when to use linked list method? See, अगर आपका जो ग्राफ है, अगर आपका ग्राफ छोटा सा है, जैसे ये आपका एक छोटा सा ग्राफ है, राइट? जैसे कि आपका केवल कुछ नंबर ऑफ एजेस ही हैं इसमें, राइट? 5 नोड्स है तो उसके अगेंस्ट आपके 5 या 6 या 7 आपके एजेस हैं, राइट? एजेस हैं। देन उस केस में आपका लिंक लिस्ट वाला मेथड ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कम है, राइट? बट अगर आप इसी मैट्रिक्स को यूज करोगे किसी एक ऐसे ऐसे ग्राफ में जहां पर हर एक नोड से इंटरकनेक्टेड है, फॉर एग्जांपल आपकी नोड्स ये है, हर एक नोड से इंटरकनेक्टेड 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 है, राइट? तो इस केस में इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपको ये हैंडल करना, राइट? तो जब भी आपका ऐसा कोई सिनेरियो जहां पर आपका जो मैट्रिक जो आपकी ग्राफ है वो डेंस है, तो वहां पर इट इज नॉट ए गुड चॉइस टू यूज एडजेसेंसी लिस्ट। उस केस में हम लोग मैट्रिक्स को यूज कर सकते हैं, राइट? मैट्रिक्स वाला मेथड ज्यादा बेटर है यस फॉर सर। डेंस ग्राफ। बट अगर आपका डेंस ग्राफ नहीं है, स्पार्स ग्राफ है, तो उस केस में आप लिंक लिस्ट वाला मेथड यूज कर सकते हैं, राइट बच्चे? इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। तो आपके पास जो मोस्ट कॉमन तरीके हैं किसी भी ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के, वो दो ही हैं। या तो आप एडजेसेंसी मैट्रिक्स यूज करेंगे या तो आप एडजेसेंसी लिस्ट यूज करेंगे उसको कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करने के लिए, राइट? तो जब भी डेंस ग्राफ होगा तो आप मैट्रिक्स का मेथड यूज करेंगे क्योंकि वो ज्यादा बेटर है ना? क्योंकि भाई हर एक नोड से कनेक्टेड है, तो उसका रिप्रेजेंटेशन ज्यादा आसान होगा मैट्रिक्स में बजाय लिंक लिस्ट में। क्योंकि अगर आपके हर एक नोड से हर एक नोड इंटरकनेक्ट हुई, तो उस केस में आपका जितनी नंबर ऑफ नोड्स हैं, फॉर एग्जांपल 4 नोड्स हैं, तो हर एक लिंक लिस्ट में कम से कम 4 आपके नोड्स होंगी ही होंगी, 4 नोड्स होंगी ही होंगी, ऐसे करके। तो जब आपको पता है कि 4 के लिए 4 बार हम यूज करेंगे, 4 लिंक लिस्ट ऑफ 4 नोड, 4 नोड, दैट मीन्स बेटर वी विल यूज दिस वन, दिस मेथड, एडजेसेंसी मेथड, बिकॉज इसमें हम वही तो कर रहे हैं, हर एक नोड से हर एक नोड का पाथ ही तो हम इसमें फिल कर रहे हैं, राइट? तो डेंस के लिए आपका मैट्रिक्स मेथड सही है। और जब स्पार्स है, जब छोटा है, मतलब जब आपका हर एक नोड से हर एक नोड इंटरकनेक्टेड नहीं है, उस केस में आपके पास
बेटर है कि आप लिंक लिस्ट यूज करो, क्योंकि वहां पर आपकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, वो बेटर है बजाय मैट्रिक्स के, क्योंकि मैट्रिक्स में आपको हायर हायर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देनी पड़ेगी, एन स्क्वायर की देनी ही देनी पड़ेगी, चाहे आप स्पार्स मैट्रिक्स में यूज करो चाहे डेंस में करो। तो बेटर है डेंस में उसे यूज करो। जब स्पार्स मैट्रिक्स है तो उसमें लिंक लिस्ट का यूज करो, उसमें आपकी कॉस्ट कम पड़ेगी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, राइट। यहाँ तक बात क्लियर होगी बच्चे? यस सर। तो अभी आपको बेसिक क्लियर हो गया कि ग्राफ क्या चीज है। ग्राफ एक तरह से बोला जाए तो ट्री है, बट उसमें साइकिल्स इंक्लूड कर दो तो वो ग्राफ में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ट्री में आप साइकिल्स इनेबल कर दो, दैट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज ग्राफ, राइट डियर? यस सर। Yes, sir. ओके, इफ इट इज क्लियर टू यू, देन कम टू आवर ट्रेवर्सल पार्ट। ओके ओके, अभी तक हमने समझा कि ग्राफ क्या है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन वी हैव ग्राफ ट्रेवर्सल टेक्निक, कि ग्राफ को ट्रेवर्स करने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। तो मोस्ट पॉपुलर इज ब्रीथ फर्स्ट सर्च एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च, राइट। ये दो ही तरीके आपके पास हैं किसी भी ग्राफ को ट्रेवर्स करने के लिए। जो आपका ब्रीथ फर्स्ट सर्च है वो क्यू का यूज करता है, क्यू डाटा स्ट्रक्चर का यूज करता है ट्रेवर्स करने के लिए, और डेप्थ फर्स्ट सर्च जो है वो स्टैक का यूज करता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल लेट्स कम वन बाय वन। विल टॉक अबाउट ब्रेथ फर्स्ट सर्च फर्स्ट, राइट। सो इसमें क्या करना है बच्चे, हमें इसको ट्रेवर्स करना है। तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च मीन्स इट इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज लेवल वाइज exploration, right? It is called exploration. Level wise exploration. In this case, we will explore each node with its adjacent one, right? So अगर आपको गिवन है कि भाई, आपको क्वेश्चन में गिवन है कि भाई किसको रूट मानना है, मतलब कहाँ से स्टार्ट करना है, किस वाली नोड से स्टार्ट करना है, तब तो आप उससे यूज करोगे। बट अगर नहीं दिया है तो आप कोई भी एक नोड को सेलेक्ट कर लोगे एज ए रूट नोड। आप एक रूट सेलेक्ट कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग मान लो, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कह रहे हैं तो हम लोग मान रहे हैं इस केस में कि भाई हमारा स्टार्ट जो हम करेंगे वो इस वाली नोड से शुरू करेंगे, जीरो वाली नोड से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे लिखा भी है टेक एनी नोड एज रूट नोड इफ नॉट मेंशन्ड, राइट। और वी विल यूज क्यू डाटा स्ट्रक्चर फॉर breath first search. So breath first search means we will first cover one level, which will be first root node, right? Next level of this breath first search will be nearest to first level, nearest to level 0. What are the nodes at nearer to level 0? We have 1 and 3 are the nearest neighbor of 0, right? So our next level 1 will be this one, level 1. Then we will explore 1 and 3, level 1. And at third phase, we will go to level 2, right? So which are the nearest one? These three are the nearer one, right? 2, 4, 5. And at the last phase, we will cover level 3, here, right? Which will contain node number 6. Okay, तो अब कैसे करना है? आपने रूट नोड सेलेक्ट कर ली। लेट मी चूज रेड कलर। हमारी रूट नोड है 0, राइट। वी विल मेंटेन ए क्यू फॉर दैट, राइट। आर यू एबल टू सी द क्यू नाउ? सी, वी विल मेंटेन ए क्यू for this. Okay, this is our queue, and we will insert and delete items one by one. So at the level 0 we have root only, so we will put insert 0 here in the queue, right? And after that we have to choose its neighbor. Who are the neighbor of 0 here? Can you see? P1. 1 and 3. So there is no method defined which tells that we have to choose 1 first or we have to choose 3 first. जो भी आपको अच्छा लगे। अगर आप 1 1 3 को यूज करना, पहले 1 लिखना चाहते हैं तो 1 लिखें, पहले 3 लिखना चाहते हैं तो 3 लिखें। इसीलिए हम कहते हैं कि जब ट्रेवर्सल कर रहे हैं बीएफएस ट्रेवल कर रहे हैं, तो उसमें आपका कभी भी ये नहीं हम कह सकते कि यूनिक ट्रेवर्सल होगा।
तो लेट्स से वी कंसिडर फर्स्ट 1 देन 3, राइट। तो अब क्या करेंगे, रिजल्ट में हम प्रिंट करते रहेंगे। तो पहले हमारा हमने सेलेक्ट किया रूट को, उसको इंसर्ट किया क्यू में, और फिर उसको हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। यहाँ से डिलीट किया तो 0 आ गया, प्रिंट हो गया इस पे। अब इसके नेबर्स को इंसर्ट करना है। इसके नेबर कौन कौन से हैं, 1 एंड 3। 1 एंड 3 को मैंने इंसर्ट कर दिया क्यू में, राइट। ठीक है जी, यानी कि मैं लेवल 1 पे आ चुका हूँ। यहाँ पे लेवल 1 तक मैं ट्रेवर्स कर चुका हूँ, मेरे 3 आइटम आ चुके हैं, राइट। अब मैं इसमें से नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, 1। 1 को डिलीट करूंगा कि भाई 1 विजिट हो गया है, ठीक है। तो 1 को मैंने डिलीट किया। अब मेरे को जिसको मैं डिलीट कर रहा हूं उसके नेबर्स देख रहे हैं, राइट। अब उसके नेबर्स कौन कौन से हैं, 1 का नेबर कौन कौन सा है, एक तो 1 का नेबर देखो, इसका नेबर कौन कौन सा है, 0, 3, 2 एंड 5, राइट, यही है। तो अब इसमें देखो कि कौन कौन से ऐसे हैं जो अनविजिटेड है। तो 0 तो ऑलरेडी विजिटेड है, देखो 0 ऑलरेडी विजिटेड है, 0 आपके आउटपुट पे आ चुका है ऑलरेडी, ठीक। ठीक है बच्चे, 3 भी आपका क्यू में है, 3 को भी आप कंसिडर नहीं करेंगे। अब आपके पास कौन सी फर्दर दो न्यू नोट्स मिली आपको, 2 एंड 5। तो आप 2 को इंसर्ट करेंगे एंड 5 को इंसर्ट करेंगे, राइट। अब नेक्स्ट एलिमेंट को डिलीट करते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्यू में क्या है, 3। तो अब हम आ गए 3 पे, इस पॉइंट पे। तो हमने 3 को डिलीट कर दिया यहाँ से। अब देखो इसके नेबर में कौन कौन से हैं, इससे कनेक्ट कर कौन कौन से हैं। तो इससे कनेक्ट है आपका 0, 1, 2 एंड 4। और तो कोई कनेक्ट नहीं है इसके इसके नेबर में, और तो कोई नहीं है ना बच्चे। बच्चे यस सर। ठीक है, तो 0 को आप नहीं कंसिडर कर सकते क्योंकि 0 ऑलरेडी ट्रेवर्स हो चुका है, 1 भी ऑलरेडी ट्रेवर्स हो चुका है, 2 ऑलरेडी क्यू में है, यहाँ पर देखो 2 ऑलरेडी क्यू में है, देखो 2 2 ऑलरेडी क्यू में है, राइट। तो 2 को भी नहीं करेंगे। 4 4 को हम इंसर्ट करेंगे। अब 4 को हम इंसर्ट करेंगे, ठीक है। 4 इंसर्ट हो गया बच्चे, ठीक है, इंसर्ट हो गया 4 को, ठीक है। तो यहां तक हमारा 3 के सारे नेबर्स अब आ चुके हैं। कोई भी ऐसा नेबर नहीं है जो क्यू में नहीं है, या फिर हमने ट्रेवर्स जो अभी तक हमने सेलेक्ट ना किया हो। इसका ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी आ चुका है, और ये भी आ चुका है। यही इसके नेबर्स हैं। अब हम नेक्स्ट एलिमेंट क्यू में से कौन सा है, 2। 2 को डिलीट करते हैं, 2 को डिलीट किया। अब 2 के नेबर्स कौन कौन से हैं बच्चे, 2 का नेबर है एक तो 1, 3, 5 एंड 4, ठीक है, यही है ना, 1, 3, 5 एंड सॉरी 5 एंड 4। 1 भी आ चुका है, ये भी कंसिडर नहीं होगा, 3 भी आ चुका है, ये भी कंसिडर नहीं होगा, 5 भी आ चुका है, ये भी कंसिडर नहीं होगा, 4 भी आ चुका है, ये भी कंसिडर नहीं होगा। तो यानी कि इसके ऑलरेडी सारे मेंबर्स यहाँ पर ऑलरेडी आ चुके हैं। अब अब मुझे नेक्स्ट एलिमेंट सेलेक्ट करना होगा डिलीट करने के लिए, वो है 5। अब मैं पहुंच गया यहाँ पर 5 में। अब इसके नेबर्स देखते हैं कौन कौन से हैं। इसका नेबर है 1, 2, 1 एंड 2, दैट्स इट, यही इसके नेबर है। और 1 एंड 2 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो ये भी कंसिडर नहीं होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट किस पे आएंगे, 4 पे। अब हम पहुंच गए यहाँ पर 4 पे। 4 पे देखा, 4 के नेबर्स चेक करते हैं। 4 का नेबर है 3, 2 एंड 6। तो 3, 2 एंड 6, ठीक है जी। तो देखो 3 ऑलरेडी आ चुका है, 2 आ चुका है, 6 ऐसा है जो अभी तक नहीं आया, तो उसको हम इंसर्ट करेंगे 6 को यहाँ पर, राइट। ठीक है, तो यानी कि मेरा 5 भी डिलीट हो चुका था, 4 भी अब मैंने डिलीट कर चुका हूँ, ठीक है। अब मेरे नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है क्यू में, 6। 6 पे जाता हूँ, 6 पे देखता हूँ कौन कौन से नेबर हैं इसके बच्चे। एक तो 1, एक 4, एंड 1 एंड 4 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो ये भी कंसिडर नहीं होंगे, यानी कि हम 6 को डायरेक्टली यहाँ पर डिलीट कर देंगे। तो दिस इज द ब्रीथ फर्स्ट ट्रेवर्सल ऑफ दिस ग्राफ, राइट। तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि इस पे आपका अब जैसे ये है, ये तो आपने आपका जो आया है ये रिजल्ट, ये यूनिक ट्रेवर्सल नहीं है,
यूनिक ट्रेवर्सल कभी भी नहीं हो सकता किसी भी ग्राफ का। क्यों? क्योंकि आपने जब आपने ट्रेवर्सल किया था तो आपने इस डायरेक्शन में पहले इसको 1 को चूज किया था। हो सकता है कि कोई बंदा पहले इसको चूज करे, वो 3 1 करे, यहाँ पर 3 1, तो ट्रेवर्सल में डिफरेंस आएगा। तो मल्टीपल ट्रेवर्सल वैल्यूज हो सकती हैं, मल्टीपल ट्रेवर्सल हो सकता है इसमें, राइट। तो जब भी हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च की बात करें, यानी कि हम लेवल बाय लेवल, जैसे आप ब्रीथ करते हैं ना, तो ब्रीथ में आपका क्या लंग्स जो होते हैं वो कैसे फूलते हैं? तो पहले छोटा छोटा रहता है लंग, फिर धीरे धीरे फूलता है जब आप सांस अंदर खींचते हो। तो वही आप यहाँ पर कर रहे हो, एक्सप्लोरेशन कर रहे हो, राइट। हर एक नोड पे जाके उसके नेबर नोड को एक्सप्लोर कर रहे हो, उनको कंसिडर कर रहे हो एक एक करके। फिर उस लेवल का जब कंप्लीट हो रहा है, फिर आप नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो, फिर आप नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो, लाइक दैट। तो ब्रीथ फर्स्ट सर्च मीन्स आप एक्सप्लोरेशन ऑफ नोड्स कर रहे हो लेवल बाय लेवल। फॉर दैट वी आर यूजिंग क्यू, राइट। क्यू में डालते जाएंगे, जिसको हम सेलेक्ट करते जाएंगे उसको क्यू में डालते जाएंगे, फिर जब हम उसको डिलीट करेंगे फिर उसके नेबर्स को हम इंसर्ट करेंगे क्यू में, राइट बच्चे? यस ये सर। ये समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट वी हैव डीएफएस। डीएफएस में क्या होगा बच्चे? डीएफएस में जहां आप यहाँ पर क्या कर रहे थे, आप यहाँ पर लेवल बाय लेवल जा रहे थे। पहले आप लेट मी ओके पहले आप इस लेवल पे जा रहे थे, उसकी नोड को डाल रहे थे। फिर आप उसके नियरेस्ट वाले लेवल पे जा रहे थे, उसके नेबर्स को दोनों को कंसीडर कर रहे थे। देखो यहाँ पर 1 और 3 दोनों को कंसीडर कर रहे थे। और इसमें फिर नेक्स्ट जाके फिर जितनी भी नोट्स अवेलेबल थे उनको कंसीडर कर रहे थे, फिर लास्ट लेवल पे जाके फिर कंसीडर कर रहे थे। डेप्थ फर्स्ट सर्च में क्या है? डेप्थ फर्स्ट सर्च में कि भाई आप, जैसे आप इस लेवल पे आपने सेलेक्ट किया, एक नोड को सेलेक्ट किया, ठीक। उसके बाद जब आप नेक्स्ट लेवल पे जाओगे तो आपके पास दो ऑप्शन है, 1 3। तो आप पहले एक ऑप्शन पे जाओगे, किसी एक ऑप्शन पे जाओगे। लेट से आपने 1 चूज किया, 1 चूज करने के बाद फिर आप उसके जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, उसमें से किसी एक पे जाओगे। फिर उसके पास पहुंचोगे, उसमें से फिर मल्टीपल ऑप्शंस में से किसी एक को चूज करोगे, फिर मल्टीपल ऑप्शंस में से किसी एक को चूज करोगे, अनटिल आपको कोई एक ऐसी नोड ना मिल जाए जिसका कोई भी नेबर ना हो, राइट, जिसका कोई भी विजिटेड अनविजिटेड नेबर ना हो। तो अब इसको समझते हैं हम लोग, ये लेवल बाय लेवल नहीं है, ये डेप्थ बाय लेवल है, राइट। मतलब हम इसमें डेप्थ में जाते हैं, पहले एक डायरेक्शन में जाते हैं, फिर जब उस डायरेक्शन में हमारा कंप्लीट हो जाता है फिर बैक ट्रैक करके हम सेकंड डायरेक्शन चूज करते हैं, राइट। तो इसके लिए हम लोग जो डाटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं वो है बच्चे स्टैक, राइट। तो हम लोग देखते हैं, इसमें ही देखते हैं कैसे करेंगे। अ, देखना बच्चे, विजिबल है? वर्ड्स विजिबल है आपको? ये ठीक है, तो हमने चूज किया 0 को रूट, राइट, और हमने स्टैक मेंटेन करनी शुरू कर दी। ठीक है, तो हमने इसको सेलेक्ट किया, तो सबसे पहले हम इंसर्ट करेंगे स्टैक में 0 को, राइट। फिर अब मैंने यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शन है, इसके नेबर में देखूंगा मैं, इसके नेबर में मेरे पास दो ऑप्शन है 1 और 3। तो किसी भी एक डायरेक्शन को मैं चूज कर लूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने चूज किया 1 वाली डायरेक्शन को, मैं 1 की तरफ जा रहा हूँ पहले। तो मैंने 1 को चूज किया, तो ये नेक्स्ट एलिमेंट जो मैंने सेलेक्ट किया वो था 1, उसको मैंने इंसर्ट कर दिया किसमें? स्टैक में। ठीक है, अब 1 के बाद मेरे पास 3 नेबर हैं, इनमें से मेरे को किसी एक को चूज करना है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने चूज किया 3 को, ठीक। तो 3 को मैंने इंसर्ट कर दिया स्टैक में, ओके। उसके बाद मेरे पास दो ऑप्शंस थे, एक ये था, एक ये था। मैंने चूज किया 2 को, तो मैं अब यहाँ पर आ गया, 2 पे आ गया, 2 को मैंने इंसर्ट कर दिया, ओके। फिर यहाँ पर भी मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन है, मैंने चूज किया 4 को, राइट। तो मैंने 4 को इंसर्ट कर दिया क्यू में, सॉरी स्टैक में, ओके। फिर मैं यहाँ पर मेरे पास कौन कौन से ऑप्शन है? एक तो है 4 to 3, 4 to 2, 4 to 6। तो 4 to 3, 3 तो ऑलरेडी विजिटेड है तो वहां मैं जा नहीं सकता, 2 भी ऑलरेडी विजिटेड है, वहां मैं जा नहीं सकता। फिर मैं आया 6 पे, मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा 6, तो मैंने 6 को इंसर्ट कर दिया अपने स्टैक में, पुश कर दिया मैंने स्टैक में, राइट। अब मैं इस पॉइंट पे हूँ, ठीक है। 4 तो मेरा हो चुका है, 6 पे हूँ मैं। अब 6 पे मैं देखता हूँ कि मैं कहाँ जा सकता हूँ। अब मैं
4 पे तो नहीं जा सकता, 4 तो ऑलरेडी विजिटेड है। 1 पे नहीं जा सकता, 1 भी ऑलरेडी विजिटेड है, और कोई पाथ मेरे पास अवेलेबल नहीं है, यानी कि मैं ना तो यहाँ जा सकता हूँ ना मैं यहाँ जा सकता हूँ। तो मेरे पास अवेलेबल पाथ अब कोई है नहीं, यानी कि यहाँ पर मुझे स्टॉप करना पड़ेगा और यहाँ से मुझे बैक ट्रैकिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो डीएफएस विल मेक यूज ऑफ बैक ट्रैकिंग मेथड। क्यों? ये फाइंड आउट करने के लिए कि कोई नोड हमारे पास ऐसी तो नहीं जो अनविजिटेड है। अगर हम अभी ध्यान से देख रहे हैं तो अभी हमने देखा होगा कि हमारे पास 7 नोड हैं, 7 में से 6 मैं ट्रेवर्स कर चुका हूं, मेरी अभी भी एक नोड पेंडिंग है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग यूजिंग स्टैक स्टैक का यूज करेंगे कि यहाँ पे बैक ट्रैक करके कहाँ जाना है। तो चूंकि हमें बैक ट्रैकिंग यूज करनी है, इसलिए लोगों ने यहाँ पर स्टैक का यूज किया। अब चूंकि मेरे पास 6 से और कहीं जाने का पाथ अवेलेबल नहीं था, तो मैं बैक ट्रैक करूंगा। अब बैक ट्रैक करूंगा तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझे 6 से कहां पर जाना है। तो मैं क्या करूंगा, 6 को बाहर करूंगा, 6 को पॉप करूंगा। तो 6 को मैंने पॉप कर दिया, तो अब मेरे पास बचा 4, यानी कि मुझे 4 पे आना है बैक ट्रैक करके। ठीक है, मैं 4 पे आ गया। लेट मी चूज डिफरेंट कलर, बैक ट्रैकिंग, ओके। तो यहां से कोई पाथ नहीं था, तो मैंने चूज कर लिया 4, क्योंकि स्टैक में 6 के बाद 4 पड़ा है। 6 को मैंने अगर पॉप कर लिया तो मेरे पास बचा 4। अब मेरे को 4 का जितने भी नेबर्स हैं, जितने भी रूट्स हैं, उनको चेक करना है कोई ऐसा रूट भी है जिसमें मैं अभी तक गया ही नहीं हूँ। तो अभी देखते हैं। 4 से 3 पाथ जा रहे हैं, एक 3 की तरफ जा रहा है, एक 2 की तरफ जा रहा है, एक 6 की तरफ जा रहा है। तो 6 पे तो नहीं जाएंगे वापिस, और तो ऑलरेडी हो चुका है। 3 भी ऑलरेडी हो चुका है, स्टैक में देखो पड़ा हुआ है 3 यहाँ पर। 2 भी ऑलरेडी हो चुका है, 2 भी यहाँ पर पड़ा हुआ है। दैट मीन्स मेरे पास इसके आगे जाने का कोई पाथ बचा ही नहीं है जहां पर मैं जा सकता हूं। तो मैं 4 को भी पॉप आउट कर दूंगा। पॉप आउट कर दिया मैंने, तो अब मुझे पता चला कि अब मेरे को कहाँ जाना है, 2 पे। तो अब मैं बैक ट्रैक करके 2 पे जाऊंगा। ठीक है, मैं 2 पे चला गया। अब मैं 2 पे आ गया। 2 पे मैं देखूंगा कौन कौन से रूट्स अवेलेबल हैं। तो 2 पे जाने के बाद मुझे पता चला 1 2 2 3 एक अवेलेबल है, 2 2 4 एक अवेलेबल है, 2 2 1 एक अवेलेबल है, एंड 2 2 5 एक अवेलेबल है। तो यहां से मुझे पता चल गया कि 2 2 5 भी एक रूट अवेलेबल है, राइट। तो जो मैंने अभी तक ट्रेवर्स नहीं किया, तो यहां पर मैं क्या करूंगा बच्चे, क्या करूंगा। अब मेरे को इसको इंक्लूड करने का है ना, इंसर्ट इसको 5। मैं, हाँ तो इंसर्ट करूंगा ना 5 को। ठीक है, तो 5 को मैंने इंसर्ट कर दिया। अब मैं 5 पे पहुंच गया। ठीक, 5 पे मैंने देखा कौन कौन से रूट अवेलेबल, अब पाथ अवेलेबल है। 5 to 2 अवेलेबल है, बट वहां तो मैं 2 तो ऑलरेडी कंसिडर कर चुका हूँ, राइट। 5 to 1 अवेलेबल है, ओनली केवल 2 ही पाथ अवेलेबल हैं, 5 to 2 एंड 5 to 1। अब चूंकि यहाँ से अब मेरे पास आगे जाने का कोई रास्ता नहीं, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ से मुझे बैक ट्रैक करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं अब 5 को पॉप आउट कर देता हूँ। लेट्स से 5 को मैंने पॉप आउट कर दिया। ठीक, तो अब 5 को जब मैंने पॉप आउट किया तो फिर से मैं 2 पे आ गया। 2 पे मैं चेक करूंगा कोई पाथ अवेलेबल है, नहीं। देखो, 5 वाला पाथ भी हो चुका है, 1 वाला भी हो चुका है, 3 वाला भी हो चुका है, एंड 4 वाला भी हो चुका है। तो यानी कि वी नीड टू पॉप आउट 2 ऑल्सो। Then we get to know that next we have to go to 3. Now we reach to 3 at backtracking. Okay, 3 पे पहुंच गया। 3 पे चेक करते हैं क्या कोई पाथ अवेलेबल है। 3 से 1 वाला पाथ नहीं ले सकते, 1 ऑलरेडी हो चुका है। 3 से 0 वाला पाथ नहीं ले सकते, ऑलरेडी हो चुका है। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर भी कोई पाथ नहीं, फिर मैं यहाँ से बैक ट्रैक करूंगा। तो बैक ट्रैक करने के लिए मुझे यहाँ से इसको डिलीट करना पड़ेगा। 3 को डिलीट किया तब मुझे पता चला कि 1 पे जाना है गायब। ठीक है, मैं 1 पे वापस आ गया। 1 पे मैंने देखा कोई पाथ अवेलेबल है, 1 to 0, 0 तो ऑलरेडी हो चुका है, 5 वाला भी हो चुका है, 2 वाला भी हो चुका है, और 6 वाला भी ऑलरेडी हो चुका है, आउटपुट स्क्रीन में जा चुका है। तो यानी कि 1 पे भी मेरे पास कोई पाथ अवेलेबल नहीं है। तो वहां से बैक ट्रैक जाना है मुझे। तो 1 मैंने यहाँ पर रख कर दिया। ठीक, पॉप आउट कर दिया। फिर अब मैं यहाँ पे कोई पाथ नहीं, तो मैं बैक ट्रैक करूंगा, कहाँ जाऊंगा, 0 पे। अब मैं 0 के पाथ देखूंगा, 0 to 1 ऑलरेडी हो चुका है, 0 to 3 ऑलरेडी हो चुका है, 2 ही पाथ थे मेरे पास। इसको भी मैं पॉप आउट कर दूंगा। तो बैक ट्रैकिंग में जब मैं यहाँ पर पहुंचा, यहाँ से मैंने इसको पॉप आउट किया, तो मेरी अब स्टैक एम्प्टी हो गई, एम्प्टी हो गई। यहाँ पर आपकी बैक ट्रैकिंग स्टॉप हो जाएगी। जब आपकी स्टैक एम्प्टी होगी, इसका मतलब बैक ट्रैकिंग क्लोज हो चुकी है, आप सारी की सारी नोड ट्रेवर्स कर चुके हो।
राइट, राइट बच्चे। यस सर। तो ये है आपका डेप्थ फर्स्ट सर्च, मतलब आपने कोई एक डायरेक्शन चूज की, आपने कोई एक डायरेक्शन चूज की, पहले उसकी डेप्थ में चले गए। हो सकता है यहाँ पर आप, हम लोग तो इस तरफ गए थे, हो सकता है कोई बंदा पहले इस तरफ जाए। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो हमारा डेप्थ फर्स्ट सर्च जो आया हमारा वो यूनिक है। तो इट इट कुड नॉट बी यूनिक, राइट, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो डिसीजन है। ऐसे हो सकता है कि जहाँ जब हम 0 to 1 गए थे, हो सकता है कोई बंदा 0 to 3 से स्टार्ट करता, या फिर 1 पे जब गए थे तो कोई बंदा 1 to 3 ना यूज करके 1 to 2 यूज करता, या फिर 1 to 5 यूज करता। तो उसका डेप्थ फर्स्ट सर्च स्ट्रिंग अलग होती। राइट बच्चे, समझ में आ गया? हेलो, दोनों में डिफरेंस दिखा बच्चे? यस सर। है ना, एक में तो आप हर एक नोड को कंसीडर कर रहे हो, नेबर नोड को, जैसे हम बीएफएस में है। बीएफएस में हम लोग हर एक नोड को, पहले हम इस नोड को कंसीडर किया हमने, फिर उसके नेबर्स इसको भी कंसीडर किया, उसके सेकंड नेबर को भी कंसीडर किया। पहले एक लेवल के नेबर, जो फर्स्ट लेवल के नेबर है, उनको कंसीडर कर लिया, वो हमने यहाँ पर दिखाया। फिर उसके नेक्स्ट लेवल के जो आपके हैं उनको कंसीडर किया नेक्स्ट उसमें इटरेशन में, फिर लास्ट लेवल को कंसीडर किया। यानी कि हर एक स्टेप पॉइंट पे जो आप डिसीजन ले रहे हैं वहां पर जितने भी डिसीजन अवेलेबल हैं उन सबको आपने कंसीडर किया इन केस ऑफ ब्रेथ फर्स्ट सर्च, राइट। बट इन केस ऑफ डेप्थ फर्स्ट सर्च, जो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल थे उसमें से कोई एक ऑप्शन को आपने चूज किया। जैसे हमने तो 1 चूज किया था, हो सकता है कि कोई बंदा 3 चूज करता 0 के बाद, राइट। तो यानी कि एक तो आपका कंप्लीटली एक्सप्लोर कर रहा है, और डेप्थ फर्स्ट सर्च के केस में आप सर्च कर रहे हो ना कि एक्सप्लोर कर रहे हो। तो एक को चूज कर रहे हो, फिर उसके अंदर उसकी डेप्थ में जा रहे हो, जितना डेप्थ में आप जा सकते हैं, राइट। तो आपने हमारे केस में हम 0 to 1 गए, फिर 1 से हमने 1 to 3 वाला पाथ सेलेक्ट किया, फिर 1 to 3 के बाद हमने 3 to 2 वाला, फिर 3 to 4 वाला, फिर 3 to 6 वाला पाथ हमने सेलेक्ट किया। अब इस पॉइंट पे जब हम पहुंचे 6 पे, तो हमें पता चला यहाँ से अब कोई भी रूट नहीं है, तो हम यहाँ से अब स्टार्ट कर देते हैं बैक ट्रैकिंग। तो हमने यहाँ से बैक ट्रैकिंग शुरू करी। बैक ट्रैकिंग के लिए हमने स्टैक का यूज किया था। उससे हमें पता चल पा रहा था कि हमें बैक ट्रैक करके जाना कहाँ है। तो 6 से हमें कहाँ जाना था, वापस बैक ट्रैक करके 4 पे। तो वो हमें तो दिख रहा है कि 4 से आए हम, बट कंप्यूटर को बताने के लिए हमने स्टैक यूज किया, 6 को पॉप आउट किया, तो हमें पता चला कि हमें 4 पे जाने का था। तो 4 पे गए, 4 से फिर बैक ट्रैक करके 2 पे गए, फिर इसके नेबर्स चेक करे। इसका नेबर हमें पता चला कि ये वाला हमारा कंसिडर ही नहीं हुआ था, तो इसको कंसिडर किया। फिर यहाँ पर हमें डिसीजन लेना था कि कहाँ जाना है, कोई पाथ अवेलेबल ही नहीं है, तो हमने यहाँ से बैक ट्रैकिंग स्टार्ट करी दोबारा। ऐसे ऐसे करके बैक ट्रैक कर करके आप रूट नोड पे पहुंच गए। और कब आपको पता चला कि आपको एल्गोरिथम स्टॉप करनी है, जब आपका जो आपने मेंटेन की थी स्टैक वो एम्प्टी हो गई है, एम्प्टी हो गई है, इट इज एम्प्टी। जैसे ही वो एम्प्टी होगी, आपको अब समझ में आ गया कि आपका सारे की सारी नोड ट्रेवर्स हो चुकी है, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च, राइट डियर। हैव यू ऑल गॉट दिस? Yes, sir. ओके, इज देयर एनी डाउट? अगर डाउट है बच्चे तो पूछो। नो सर। है ना। तो ये देखो, ये मैंने एक डायग्राम भी बना रखा था। हाँ, अगर आप इसमें क्या कहते हैं बीएफएस लगाएंगे, बीएफएस, तो यानी कि आप रूट पे जाएंगे, इसको इसको कंसिडर करेंगे, फिर इन दोनों को कंसिडर करा, फिर इसको इसको कंसिडर किया जाएगा, फिर इसको इसको कंसिडर किया जाएगा, फिर इसको इसको कंसिडर किया जाएगा, फिर इसको कंसिडर किया जाएगा। यानी कि लेवल बाय लेवल, यू आर मेंटेनिंग इट लेवल बाय लेवल। पहले आप एक लेवल के नोट्स जितने भी हैं उनको आपने कंसिडर किया बीएफएस के केस में, फिर दूसरे लेवल का, फिर थर्ड सेकंड नेक्स्ट लेवल का, फिर नेक्स्ट लेवल का, राइट। और अगर इसी में डीएफएस होगा तो डीएफएस में क्या करना होगा बच्चे? डीएफएस में आप यहाँ पर पहुंचे, आप यहाँ पर आपने रूट नोड सेलेक्ट करी, उसमें से आपके पास दो ऑप्शन थे, आपने किसी एक ऑप्शन की तरफ गए, पहले आपने मान लो ये चूज किया, तो आपने फिर इसको कंसिडर किया, इसमें भी आपके दो ऑप्शन थे, तो आप इस तरफ गए, फिर आपने इसको सेलेक्ट किया, फिर
यहाँ पर एक ही ऑप्शन था, तो आप आगे बढ़ गए, यहाँ पर आ गए, राइट। यानी कि एक डेप्थ, पहले एक डेप्थ की तरफ गए, फिर वहां से आप बैक ट्रैक करके दूसरी डेप्थ की तरफ आए। जब आपको पता चला कि ये विजिटेड नहीं है, तो आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया, फिर इसको सेलेक्ट किया, राइट, इसको सेलेक्ट किया, फिर यहाँ से घूम के फिर आए आप यहाँ पर, फिर यहाँ से आपने सेकंड यूज किया, अब आपने इसको सेलेक्ट किया, फिर इसके बाद आप यहाँ आए, इसको सेलेक्ट किया, फिर यहाँ आए, इसको सेलेक्ट किया, फिर यहाँ से बैक ट्रैक करके गए, फिर आप यहाँ पहुंचे, इसको सेलेक्ट किया, देन आप बैक करके यहाँ आए, फिर यहाँ से वापस यहाँ आए। यानी कि आप डेप्थ में गए। पहले आपने पूरी पूरी जिस डायरेक्शन में आप गए उस डायरेक्शन में पूरी डेप्थ तक गए, फिर वहां से बैक ट्रैक करके सेकंड डेप्थ पे आए, फिर वापस करके नेक्स्ट डेप्थ पे गए। ऐसे ऐसे करके डेप्थ बाय डेप्थ आपने उन्हें सिलेक्शन प्रोवाइड किया, राइट। पहले आपने इनको कवर किया, राइट, फिर आपने इनको कवर किया, इनको कवर किया, फिर आपने इनको कवर किया, देन आपने इनको कवर किया, राइट। जहां एक में बीएफएस के केस में आप लेवल बाय लेवल जा रहे थे, लेवल 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 बाय लेवल जा रहे थे, यहाँ पर आप डेप्थ बाय डेप्थ जा रहे हैं। डीएफएस में डेप्थ बाय डेप्थ आप जा रहे हैं। अभी अभी डिफरेंस समझ में आ गया? इज इट क्लियर टू यू गाइस? Yes, sir. Okay, if it is clear to you, so I think it is sufficient for today lecture. Let us stop here, right? तो अभी आज हमने केवल इस वाले लेक्चर में ये समझा ग्राफ है क्या, उसमें डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड एजेस क्या होती है, वेटेड अनवेटेड ग्राफ्स किसे कहते हैं, साइक्लिक अनसाइक्लिक ग्राफ्स किसे कहते हैं, किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ्स को कंप्यूटर्स में, राइट, वो सीखा। उसके बाद उनकी दो दो ट्रेवर्सल टेक्निक्स हमने देखी। दो तरीके से हम कैसे 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 ट्रेवर्स कर सकते हैं। एक आपका था ब्रीथ फर्स्ट सर्च, एक आपका था डेप्थ फर्स्ट सर्च। ध्यान रखना बच्चे, ब्रीथ फर्स्ट सर्च एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो अगर ये समझ में नहीं आया तो पूछ लेना बच्चे, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल आता ही आता है बीएफएस एंड डीएफएस पे बच्चे, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है बच्चे, सो इफ इट इज क्लियर टू यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।